Student, I am Shruti Tiwari. Today I am going to take Marketing Management class of MBA semester 2. In this video I am going to cover what is market, what is marketing, how marketing and selling is different from each other. Next is market management philosophies, what is the traditional concept of marketing and what is the modern concept of marketing. Now, सबसे पहले हम लोग ये जानें कि बहुत लेमन के लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो मार्केटिंग एंड सेलिंग को लोग एक समझते हैं, बट इट इज़ नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. हाउ मार्केटिंग एंड सेलिंग इज़ बेसिकली डिफ्रेंशिएटेड in terms of selling starts with manufacturing the product and selling it to the customer, but marketing start with identifying the needs of the customer and then converting it into prospective goods and services, then selling it to the customer which satisfied the need and wants of the customer. Now, before going into this, let us know what is market. मार्केट क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मार्केटिंग क्या है ना. मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ बायर्स और सेलर्स एक जगह पे आते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. Market is a place where buyers and sellers come together for the exchange of goods and services in terms of money. Now, traditionally what happened? Traditionally there was barter system. Barter system में क्या होता था? मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूँ है. Commodity has been exchanged in terms of commodities. There was no exchange of money during that period. But now things has been changed. Now goods and services is being exchanged for the money. And goods and services, why customer demand goods and services? Because it satisfied the need and wants of the customer. And why producers sell it? Because they earn profit or revenue out of selling the goods and services. Now coming to the slide. Market is a place where buyer and seller come together for the exchange something of value. Value word means things which is worth of paying money. Means कस्टमर उसी चीज़ के लिए पे करना चाहते हैं जो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे, कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे. वो ₹1 का ही सामान क्यों ना हो, अगर वो हमको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर मी. तो जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, मूवी देखने जाते हैं, है ना, वी स्पेंड 3 hours एंड मनी ओवर देयर. तो हम क्या बोलते हैं? पिक्चर बहुत अच्छा था, पैसा वसूल हो गया. लेकिन अगर हमें मूवी ख़राब लगती है तो हम क्या बोलते हैं? अरे टाइम भी बर्बाद हो गया और हमारे पैसे भी बर्बाद हो गए, है ना. दिस इज़ वैल्यू. नेक्स्ट इज़ मार्केट, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल. Marketing management is concerned with ascertaining the needs of the customer and then converting it into product and services and achieving the goal of the organization through satisfying the customer needs. There are few features of market. Let us see it. First one is buyer and seller. There must be existence of buyer and seller between which exchange will be take place. Next is commodity which is being exchanged in terms of in respect of money. Next, third one is place or area. There must be a prescribed place or area where we get the commodities or services. For example, this is a college premise, है ना. अगर हमको सब्जी चाहिए तो यहाँ मिलेगा क्या? नो, वी हैव टू गो टू द वेजिटेबल मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स, है ना. तो ये हमें पता है कि यहाँ सब्जी मिलता है, दिस इज़ क्लोथ मार्केट. इस तरह से हम कैटेगराइज कर देते हैं. ये बायर और सेलर दोनों के लिए कन्वीनियंस होता है मार्केटिंग प्रोसेस को इस्टेब्लिश या परचेजिंग प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. देयर मस्ट बी 2-way कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर्स. Buyers and sellers means suppose I want something, I will go to a shop, I will ask for it कि ये है क्या सामान. He will say yes or no. अगर yes तो what is the price of that product. उसके बाद क्या होता है? हम सामान खरीदते हैं और हम पैसा पे करते हैं. अगर हम जाके दुकान में खड़े हो जाएं और कुछ ना बोलें तो how the seller will know that what exactly I want. इसलिए communication is very important in marketing process. Next is basically the term market is derived from the word
Latin word marketus, which means to trade. Its meaning is only to trade. Marketing is a social process by which individual group obtain what they need and want. It is a social process. What does it mean, social process? Social process means there must be interaction between people, and there must be interaction between people. People, who is people here? Buyer and seller, है ना. बायर क्या करते हैं, जो अपने नीड एंड वांट्स होते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए सामान को खरीदते हैं, और जो सेलर हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सामान को बेचते हैं. सो ये दिस इज़ अ सोशल प्रोसेस सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द पीपल, doing welfare for the people. This is a social process through creating, offering and freely exchange products and services of value with each other. Next, there are few definition given by American Marketing Association and father of marketing, that is Philip Kotler. From the above definition, we can say that marketing can be defined as the management process that seeks to maximize return to shareholders by developing relationship with valued customer and creating a competitive advantage. If your product is good, if it is able to satisfy the need and want of customer, then obviously it will create a competitive advantage for you. How? It means if you are able to sell your product, customer is liking your product, it means the product is satisfying the customer. If it is satisfying the customer, then it will be a bigger competitive advantage for you, and it will help a company to survive in the market for a longer period of time. Next one, features of marketing. First one is identifying the need and wants. First, identify the need and want of the customer. Accordingly, you have to make the प्रोडक्ट, देन ओनली इट विल बी एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर. प्रोडक्ट बना लिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है. एक बात जान लीजिए, मार्केटिंग का मंत्रा है कि जो दिखता है वही बिकता है ना. प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए जो कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे सके. कस्टमर अगर उसके लिए पे कर रहा है तो उसको वो वर्थ लगे, उसको लगे कि नहीं, हमको जो हम पे किए उसके बदले में ये प्रोडक्ट हमको उतना रिटर्न दे दिया. प्रोडक्ट और सर्विस दोनों हो सकता है. यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. बहुत सारे लोग नीड एंड वांट को एक समझते हैं, बट नहीं, नीड एंड वांट्स में भी डिफरेंस होता है. डिफरेंस क्या है? सपोज आई एम हंग्री, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए. दिस इज़ माई नीड, है ना, ये ज़रूरत है मेरा. अगर हम खाएंगे नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लेकिन वांट क्या होता है? आई एम हंग्री बट आई नीड अ मैकडॉनल्ड बर्गर. भूख लगी है लेकिन हमको रोटी चावल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मैकडॉनल्ड का बर्गर चाहिए. दैट इज़ वांट. वांट इज़ चाहत, एंड इट इज़ रिटन ओवर हियर. दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड नीड, and those goods and services that people consume beyond what is necessary for survival is called want, है ना. इसके बिना हम survive कर सकते हैं, but इसके बिना हम survive नहीं कर सकते हैं. Second is creating a market offering. Creating a market offering means ऐसा ऑफर दो कस्टमर को जो कि कस्टमर को बेस्ट वे में सेटिस्फाई कर पाए, जो कि आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा है ना. नेक्स्ट इज कस्टमर वैल्यू. कस्टमर उसी चीज़ के लिए पैसा देने के लिए तैयार होता है जो कि उसको फील होता है कि ये प्रोडक्ट वर्थ है ना. इट इज़ गिविंग रिटर्न आउट ऑफ वॉट ही हैड मेड द पेमेंट. सी, कस्टमर इज़ रेडी टू पे दैट मच अमाउंट वॉट ही फील्स वर्थ द बेनिफिट ही इज़ गोइंग रिटर्न फ्रॉम द product. Suppose I am giving you an example. I am buying a phone of rupees 40,000 and I belong to a field of music. I have to download so many apps related with the music. तो अगर वो फ़ोन वो ऐप डाउनलोड करने के लिए एबल नहीं है, अगर हम मेरे जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो काम है उसको करने के लिए वो एबल नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो वो फ़ोन 40 रुपीज़ का वर्थ नहीं होगा. लेकिन अगर वो कर पा रहा है देन द कस्टमर विल रेडी टू पे 40,000 ऑफ अमाउंट. क्यों? क्योंकि जो उसका काम है वो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसका काम उससे
हो जा रहा है, ईजिली हो जा रहा है, तो आराम से 40,000 रुपीज़ पे कर सकता है उस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन के लिए। नेक्स्ट वन इज़ एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ बीन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, there are a few market concept or market philosophies. Basically there are 5 market philosophies. First is production concept, second one is product concept, third is marketing concept, fourth is selling concept, and fifth is societal market concept. Let us discuss this, है ना। First we will discuss the concept of production concept. Production concept क्या है? Traditional concept है, सबसे older concept है। According to this concept, the consumer will buy those things which are readily available, means जो easily available होता है at affordable price, उसको कस्टमर खरीदना चाहता है। इसमें क्या है? improve production and distribution is the mantra, है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है जिसके थ्रू प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, आई एम डिस्कसिंग इट, है ना। जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाया, चैनल क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। डायरेक्ट भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरर, एजेंट, देन रिटेलर, देन टू द एंड यूज़र, है ना। देर आर 4 to 5 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जिसके थ्रू प्रोडक्ट एक जगह से मूव करके दूसरे जगह पे जाता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. See here in production concept, product which are easily affordable easily available at affordable price, and the cut cost profit will take place themselves. कट कॉस्ट प्रॉफिट विल देम सेल्फ, इसको समझाते हैं थोड़ा, है ना। अगर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखेंगे हम, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एग्जांपल बताते हैं, सपोज कीजिए एक पेन है ना। पेन मार्केट में अगर हम खरीद रहे हैं तो वो मुझे 10 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में मिल रहा है। अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हम 5 रुपया रखें या 5 रुपया में हम उस प्रोडक्ट को बना पाए तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा? 5 रुपया। अगर हम उस प्रोडक्ट को 8 रुपये में बना पा रहे हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? सिर्फ ₹2। इट मीन्स क्या है कि जितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमको मार्केट में सर्वाइव करना है, हमको कॉम्पिटिटिव भी रहना है। बहुत सारे पेन्स 10 रुपया में अवेलेबल हैं, तो अगर तुम 12 रुपये में पेन बेचोगे तो हु इज़ गोइंग टू बाय योर पेन? सी, है ना। सेम क्वालिटी, सेम लिखने का फ्लो, तो अगर वो 10 रुपये में मिल रहा है तो नो बडी इज़ गोइंग टू परचेज इट एट ₹12। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कॉम्पिटिटिव रहने के लिए उसके प्राइस को बहुत ज़्यादा भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर दें तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकता है? बढ़ सकता है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. सी, फॉर अ बुक लवर व्हाट कुड बी बेटर देन दिस? दिस इज़ अ सोफ़ा कम बुक सेल्फ, है ना. इसमें क्या है, हम बैठे हुए हैं, है ना. इट विल सेव आवर प्लेस ऑल्सो, है ना. आजकल बड़े शहरों में जगह बहुत कम होती है, लोगों के पास उतना जगह नहीं है कि वो बुक सेल्फ अलग से बनवा पाएँ, सोफ़ा अलग से लगाएं. तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट ऐसा है ना, अगर कोई बुक लवर है तो वो तुरंत इसको खरीद लेगा. कैसे खरीद लेगा, है ना. कॉस्ट भी कम लग रहा है, जगह भी कम लग रहा है, और जो उसको चाहिए वो उसको मिल रहा है ना. दिस इज़ अ सोफ़ा कम बुक सेल्फ. तो इसका क्या है, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट का ज़रूरत नहीं होता है, वो खुद बिकता है ना. अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ. क्वालिटी एंड इनोवेटिव फीचर्स इज़ द मंत्रा ऑफ सक्सेस, है ना. प्रोडक्ट शुड बी क्वालिटी ओरिएंटेड, इट शुड बी इनोवेटिव, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो कि मार्केट में नहीं है ना. कुछ जाते हैं खरीदने, देख बोलते हैं अरे ये नया आया है ना, तो हमको लगता है एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कैसा है ना. इसके फीचर्स कुछ अलग हैं दूसरे से, है ना. प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि उस प्रोडक्ट को हम एक बार ट्राई करके देखें, है ना. फोकस इज़ ऑन कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट. कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट क्या मतलब है इसका? देखिए, दिस इज़ ह्यूमन नेचर, है ना. हम लगातार एक चीज़ को यूज़ करते करते बोर हो जाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हम थोड़े टाइम के बाद चेंजेस चाहते हैं कि अगर ऐसा होता इस प्रोडक्ट में तो और अच्छा होता, ऐसा सोचते हैं हम. तो क्या क्या यहाँ पे क्या चाहिए, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. अभी कुछ है, थोड़ा सा कुछ शेप चेंज कर दो, है ना. प्रोडक्ट का कलर चेंज कर दो, थोड़ा साइज़ चेंज कर दो,
गर्ल्स के लिए थोड़ा गर्लिश लुक में कलर होना चाहिए, है ना, शेप होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। अगर ये नहीं होगा तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सरवाइव कर सकता है। इसको अगर सरवाइव करना है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी को, तो वो उसको चेंजेस करना पड़ेगा और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपने प्रोडक्ट में करना पड़ेगा, या सर्विसेज में भी। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाह रहे थे आप लोगों को, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस, है ना, बोथ आर नॉट सेम। सपोज दिस इज़ अ पोडियम, है ना, आई कैन टच इट, दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड हार्ड मटेरियल, आई कैन फील इट कि ये हार्ड है, लेकिन सर्विस को हम फील नहीं कर सकते हैं। सर्विस क्या होता है, वो इनटेंजिबल इन नेचर होता है, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट फील इट। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, व्हाट आई एम डिलीवरिंग, व्हाट आई एम गिविंग यू लेक्चर, दैट इज़ अ सर्विस, है ना, ये एक सर्विस है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, लेकिन इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम टच कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट इज टेंजिबल इन नेचर एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड वन इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। कस्टमर विल बाय दैट प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग प्रमोटेड और एडवर्टाइज और सेल। कस्टमर क्या सामान खरीदता है, जो बिक रहा है। इस कॉन्सेप्ट का ये ऐसा सोचना था कि जो ये क्या सोचता है, जो बनाए हम वो बिक जाएगा, है ना। देखिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बाद सेलिंग एंड प्रमोटिंग, एडवर्टाइज किया गया, लोगों को अवेयर किया गया कि इस टाइप का कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद क्या करते हैं, द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचो और प्रॉफिट अर्न करो, है ना। इसका ये मोटिव नहीं है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दें या कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। इसका मेन मोटिव है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, है ना, थ्रू सेलिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट। कस्टमर इज द किंग, है ना, कस्टमर किंग है। अगर कस्टमर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी नहीं है। कस्टमर है तभी प्रोडक्ट बन रहा है, कस्टमर के डिमांड चेंज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, नीड एंड वांट्स चेंज हो रहा है, तभी हमारा प्रोडक्ट भी इनोवेटिव बन रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। सो कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। इट टेक्स कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, मीन्स कस्टमर ओरिएंटेड है। जो कस्टमर चाहता है ना, ascertaining the need of the customer, then converting it into product and services and then giving them satisfaction and then earning profit, है ना। प्रॉफिट तो आपको होगा ही ऑब्वियसली, अगर सामान अच्छा है, सामान बिक रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई है, आज भी खरीदेंगे, कल भी खरीदेंगे वो, और वो खुद पब्लिसिटी करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप भी यूज़ कीजिए अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, है ना। तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मार्केट में अच्छा शेयर होल्ड कर सकता है। Next concept, fifth concept is societal market concept. See, today's marketing mantra is relationship marketing. Retaining customer is more important than making new customer. इसका क्या मतलब है, सपोज करो हम आज एक शॉप खोले, है ना, शॉप खोले, कुछ भी XYZ प्रोडक्ट ले सकते हैं, है ना। आज मेरे यहाँ नया था, बहुत ओपनिंग था, हम बहुत ज़्यादा उसके लिए पब्लिसिटी किए थे, एडवर्टीज़मेंट किए थे, बहुत सारे कस्टमर मेरे दुकान में आए, सामान ख़रीदा उन्होंने, लेकिन मेरे सामान से अनफॉर्चुनेटली वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो क्या वो दोबारा मेरा सामान खरीदेंगे? नहीं, दे विल नेवर बाय माई प्रोडक्ट अगेन। और क्या, वो खुद भी नहीं खरीदेंगे, वो वर्ड ऑफ माउथ से निगेटिव पब्लिसिटी करेंगे मेरे प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, डो नॉट बाय दैट प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट वर्थ, है ना, पैसा बर्बाद है उस प्रोडक्ट को खरीदने में। ये क्या हो गया, आज मेरे यहाँ 1000 लोग आए थे, लेकिन कल मेरे पास 10 कस्टमर भी नहीं रहा। तो दिस इज़ नॉट द सक्सेस मंत्रा। अगर आपको मार्केट में सक्सेस करना है, आज आपके यहाँ 10 कस्टमर ही आया, कल आपका 100 कस्टमर होगा, परसों आपका 1000 कस्टमर होगा। कैसे, है ना, अगर वो 10 कस्टमर सेटिस्फाई है, वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी करेगा, वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो भी खरीदेगा, साथ में दूसरे लोग भी खरीदेंगे। इससे क्या होगा, जो मार्केट शेयर है वो आपका बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, सोसाइटी किसके लिए क्या है, इस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज कंपनी क्या करता है, ट्रायंगल है, इसमें 3 चीज़ हैं, एक कंज्यूमर है, सोसाइटी है और कंपनी का मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। सोसाइटी क्या चाहता है, उनका वेलफेयर चाहता है, और कंज्यूमर क्या चाहता है,
सेटिस्फैक्शन चाहता है। तो ये जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये आपका इस चीज़ पे एम्फेसिस करता है कि किस तरीके से हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें। यहाँ पे देखिए देयर नीड्स मीन्स कंज्यूमर का नीड्स प्लस सोसाइटी फर्स्ट, है ना, सोसाइटी को प्रेफरेंस देते हैं हम, इक्वल टू बेटर बिजनेस। अगर आपको बिजनेस अपना बेटर करना है तो आपको उन दोनों चीज़ को मिला के काम करना पड़ेगा, है ना। इट पुट इन ह्यूमन वैल्यू ऑन टॉप। ह्यूमन वैल्यू ऑन टॉप मीन्स ह्यूमन को प्रायोरिटी दिया जाता है, उनके वेलफेयर को, उनके वेलबींग को प्रायोरिटी दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लें, एंड दैट विल डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। पहले ही बताया था मैंने कि लेमैन मतलब जिसको कुछ नहीं पता है वो सामान सेल कर दिए, है ना, बेच दिए, तो वो मार्केटिंग और सेलिंग को एक समझते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही बताया है कि डिफरेंस है, देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेलिंग का, है ना, यहाँ पे क्या है फैक्ट्री, सामान बन रहा है। उसके बाद क्या है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, है ना, जो बन रहा था वही बना, कोई चेंजेज उसमें लाया नहीं गया। उसके बाद सेलिंग एंड प्रमोटिंग, उसको सेल किए, प्रमोट किए। उसके बाद क्या किए हम प्रॉफिट अर्न किए, है ना, मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम के थ्रू। वाइल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मार्केट है। उसके बाद क्या है कस्टमर नीड को हम पता किए थ्रू मार्केट रिसर्च, है ना, रिसर्च किए कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, कंज्यूमर किस टाइप का है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कंज्यूमर कितना अवेयर है प्रोडक्ट के बारे में, कितना एजुकेटेड है ना। सेगमेंट करते हैं हम, अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। कंज्यूमर का इनकम कितना है, अगर इनकम कम है हम उसको महंगा सामान बेचना चाहेंगे, वो खरीदेगा क्या, नहीं, उसको अच्छा भी लगेगा फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतना बजट नहीं है। नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मीन्स इंटीग्रेट करना मीन्स जुड़ा हुआ, है ना, एक साथ मिलके। उसके बाद क्या कहते हैं प्रॉफिट अर्न, तो दोनों में ही होता है लेकिन वहाँ थ्रू सेल्स वॉल्यूम होता है और यहाँ पे क्या होता है थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज अ टेबल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सी सेलिंग एंड मार्केटिंग, इट पुट एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट को बेचने पे एम्फेसिस देता है। वाइल मार्केटिंग पुट एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, है ना, क्या चाह रहा है कंज्यूमर उसको पहले पता करते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द प्रोडक्ट फर्स्ट देन डिसाइड टू सेल, सामान बना लिए अब हम सोचेंगे कहाँ बेचना है, किसको बेचना है। पहले यहाँ पे टारगेट कस्टमर को नहीं चूज़ किया जाता है, जबकि हम मार्केटिंग में टारगेट कस्टमर को पहले चूज़ करते हैं कि आईफोन है, आईफोन किसके लिए बना है, आईफोन इज मेंट फॉर हायर इनकम ग्रुप, है ना। आईफोन अगर तुम रूरल एरिया में गांव में बेचना चाहोगे, नो वन इज गोइंग टू बाई इट। क्यों, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा भी हो सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इट इज़ नो यूज़ फॉर देम, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर देम। वो क्या खरीदना चाहेंगे, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स खरीदना चाहेंगे। अगर वो वहाँ बेच रहे हो रूरल एरिया में, वो वहाँ बिकेगा। अगर तुम ट्रैक्टर चाहो, ट्रैक्टर प्रमोट करेंगे हम अर्बन एरिया में, है ना, शहर में, तो वहाँ पे ट्रैक्टर के जितना बड़ा लोग 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, वेयर दे विल पार्क दैट ट्रैक्टर, है ना, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर देम। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ट्रैक्टर बेकार प्रोडक्ट है, आईफोन बेकार प्रोडक्ट है, नहीं, दोनों अपने अपने जगह में उतना ही यूज़फुल है। बस हमको क्या पता करना है कि हु इज़ माई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, कौन इसको खरीदेगा, है ना, ये हमको पता करना है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट इज़ मैनेजमेंट सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। उधर क्या है मैनेजमेंट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके उस पर ध्यान दिया जाता है और वहाँ पे क्या करते हैं प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये नहीं है कि हम ज़्यादा सामान बेचें, वहाँ पे मोटिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट क्या होगा, रेज करेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ प्लानिंग इज़ शॉर्ट रन ओरिएंटेड। शॉर्ट रन ओरिएंटेड मीन्स आज सामान बनाए बेचे, कल सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे इस पे उतना एम्फेसिस नहीं डाला जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस रहता है कि प्लानिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ऐसा प्लानिंग करते हैं कि हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट में सर्वाइव कर सकें। फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रेस नीड ऑन सेलर। सेलर क्या चाह रहा है, सेलर प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है। वहाँ क्या है स्ट्रेसेस या एम्फेसिस ऑन कस्टमर
और बायर्स नीड, है ना, कि बायर्स क्या चाह रहा है, जो खरीदने वाला है वो क्या चाह रहा है, वो कैसा प्रोडक्ट चाह रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, है ना। इसको भी बहुत सारे लोग सेम समझते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। कस्टमर कौन हुआ? कस्टमर इज़ दैट पर्सन हु इज़ परचेजिंग दैट प्रोडक्ट। कोई भी आदमी दुकान गया, सामान खरीद के लाया, वो उस सामान का कस्टमर हो गया, लेकिन वो उस सामान का कंज्यूमर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इट विल बी वेरी मच क्लियर। सपोज आई एम बाइंग सम बेबी प्रोडक्ट, आई एम अ मदर, आई एम बाइंग सम बेबी प्रोडक्ट। बेबी प्रोडक्ट खरीदे, it means I am customer of the baby product, not the consumer of baby product. Who is consumer of baby product? My baby, है ना। she or he is going to consume that product. इसका क्या मतलब हुआ? जो यूज़ कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, that is consumer, और जो सामान को खरीद रहा है, that person is called customer or buyer. Okay. Next is moving to the next slide. Sixth difference is व्यू बिजनेस एज गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। बिजनेस क्या है? सामान बेचने बनाने का एक जरिया है। वहाँ क्या है? व्यू बिजनेस एज कस्टमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। बिजनेस क्या है? एक सोशल प्रोसेस है जो कि कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे क्या है? 7 पॉइंट, एम्फेसिस ऑन स्टेइंग विथ existing technology and reducing cost. They are not much more concerned about bringing innovative products, bringing new technology. They are okay with what they are having, है ना। बनाना है और बेचना है ना। क्या बनाना है, कैसा बनाना है, इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता। बट वो क्या है? दे आर मच मोर कंसर्न फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट, ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि प्लानिंग इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। सर्वाइव हमको क्या करना है? लंबे समय के लिए करना है। अगर आप पुराने टेक्नोलॉजी से सामान बनाओगे, नो बडी इज़ गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट। आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल। सी एग्जाम्पल, मार्केटिंग का सबसे अच्छा चीज़ क्या है? ये जितनी भी चीज़ें सब हमारे आसपास हैं, बस हमको ध्यान देना है कि किस चीज़ को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल से तुम इसको समझोगे उतना ईजी होगा आपको ये समझने में। नोकिया फ़ोन, है ना, हमको लगता है ऑलमोस्ट जितने लोगों के पास फ़ोन होता था पहले नोकिया ही होता था, है ना। गिर भी जाता था कुछ नहीं होता था, हम बोलते थे अरे नोकिया है, कुछ नहीं होगा इसको, है ना। इतना ट्रस्ट था। लेकिन क्या हुआ नोकिया के साथ? नोकिया विंडोज़ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, लेकिन उस समय तक एंड्रॉयड फ़ोन बहुत सारे मार्केट में आ चुके थे, और उससे स्मार्टफोन के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसके, और वो जो प्राइस था वो नोकिया से बहुत कम में अवेलेबल था। अगर सेम फीचर्स हमको कम रेट में मिलेगा, देन वाई आई विल गो फॉर नोकिया। और नोकिया में वो सब फीचर्स भी नहीं है, हम उतना काम नहीं कर सकते हैं स्मूथली जितना कि हम दूसरे फ़ोन के साथ कर पा रहे थे। नोकिया क्या हुआ? मार्केट से आउट हो गया। थोड़ा टाइम के बाद नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के नाम से आया, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर से नोकिया आया है मार्केट में, नोकिया नाम से ही आया है, लेकिन अभी मार्केट बहुत सारे अदर्स कंपनीज़ जैसे सैमसंग, ओप्पो ना, ये सब फ़ोन, वीवो उसको कैप्चर कर चुका है। तो उस रेंज के फ़ोन में बात कर रही हूँ। इसका क्या मतलब है? अगर आपका टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इनोवेटिव फीचर्स, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी, देन कस्टमर इज़ नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कितने भी इस्टेब्लिश्ड कंपनी हो, कितने भी अच्छे कंपनी हो, यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट डिफरेंस इज different department works as a highly separated water tank compartment. Separated water tank compartment means कि हम एक टैंक से दूसरे टैंक में, जैसे अगर हाईली टाइट कंपार्टमेंट है तो पानी मूव नहीं कर सकता है, इसका पानी इसी में रहेगा, इसका पानी इसमें ही रहेगा, है ना। दे कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, मिल नहीं सकते हैं, वो जुड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है? एवरी डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर इन द इंटीग्रेटेड फॉर्म ना। दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, दे आर ऑल आर। हम पहले पता करते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर, क्या चाह रहा है वो। उसके बाद हमको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मैन पावर चाहिए, ये सब सारा कुछ हम कंपाइल करते हैं। कितना फंड चाहिए, है ना, कितना पैसा चाहिए उसको बनाने के लिए, कितना कंपनी के पास अवेलेबल है, कितना उसको दूसरे जगह से लोन लेना पड़ेगा, सब सारा कुछ प्लान करके
इसको मार्केटिंग को किया जाता है ना। इतना मार्केटिंग इज़ like integrated form of planning, organizing, directing, controlling and evaluating all the functions of management. Next is cost determine price. Here consumer determine price in terms price determine cost, है ना। प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से उसका प्राइस होता है। कितना कॉस्ट में बनाए हम, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना खर्च लगा हमको बनाने में। वहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर डिटरमाइन प्राइस, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। वो सामान अगर हमको 9 रुपये में मिल रहा है, तुम 10 में बेचोगे, तुम्हारा नहीं बिकेगा, है ना। तो इसलिए जो कंज्यूमर है वो डिटरमाइन करता है कि ये सामान कितना वर्थ है, कितना के लायक है ना। हम पे कर रहे हैं, इट इज़ ऑफ यूज़, इट इज़ ऑफ वर्थ और नॉट, ये कस्टमर डिटरमाइन करता है। अगर है वो ज़्यादा भी पे कर सकता है, अगर नहीं है तो वो कम भी पे करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि जो उसका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है ना। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। थैंक यू।